Dr. M. Ravi Shankar, Neurosurgery, he is Additional Professor. Dr. Pavan Kumar Verma, Associate Professor, Neurosurgery. Dr. Ashutosh Kumar, Assistant Professor, Neurosurgery. Dr. Soman Kanjilal, Neurosurgery, Assistant Professor. Coming on to faculty pre-para basic category, Professor Khalikur Rahman, Hematology. Dr. C.P. Chaturvedi, Additional Professor, Stem Cell Research Center. Dr. Anshika Srivastav, Medical Genetics. Faculty Clinical Vignette category, Professor Zia Hashim, Pulmonary Medicine. Dr. Ankur Mandelia, Pediatric Surgery, Super Specialty. Dr. Sumit Sachan, Anesthesiology. Dr. Sushil Kumar, Neonatology. New Faculty Award category, Dr. J. Kumar Miyappan, Nephrology. Dr. A. Hasina, Medical Genetics. Dr. Nidhi Singh, Anesthesiology. Coming on to the Student Award, Student Medical Published category, Nephrology se we have Dr. Saurya Saurabh Mohakuda. Dr. Dheeraj Kumar, Neurology. Student Surgical Published category, Dr. Abhishek Haldar, Neurosurgery. Dr. Nidhin Das K, Neurosurgery. Dr. Pooja Tathaskar, Neurosurgery again. Student Pre-Para Basic Published category, Dr. Suraj Singh, Stem Cell Research Center. Dr. Biswajit Sahu, Molecular Medicine. Dr. Shashank Mathur, Molecular Medicine again. Student category, Vignette Published category, Dr. Lakshmi Priya, TR, Endocrinology. Dr. Mohammad Firoz Nizam, Neurology. Dr. Nishant Agarwal, Pediatric Surgery, Super Specialty. Dr. Rahul Goyal, Pediatric Surgery. Student Medical Unpublished category, Dr. Richa Tyagi, Pulmonary Medicine. Dr. Piyush Mishra, Nephrology. Dr. Tuba Kamar, Clinical Immunology and Rheumatology. Student Surgical Unpublished category, Dr. Renel Mascarenhas, Endocrine Surgery. Dr. Nazreen Hamid, Neurosurgery. Dr. Dibya Priyadarshi Behra, Endocrine Surgery. Student Pre-Para Basic Unpublished category, Dr. Shreya Srivastav, Pathology. Dr. Pran Krishna Kakati, Stem Cell Research. Dr. Priyanka Yadav, Endocrinology. Okay. Now, Student Medical and Clinical Vignette Unpublished category, Dr. Shruti Bansal, Radiotherapy. Dr. Tarun Kumar, Pediatric Surgical Super Specialty. Dr. Devesh Gupta, Clinical Care Medicine. Dr. Krishnau Mukhoti, Pulmonary Medicine. थैंक यू एवरीवन। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वह मंच पर आकर अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। SGPCI के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री
श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, आज के इस समारोह की मुख्य वक्ता के रूप में जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रो वाइस चांसलर गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च विशाखापट्टनम प्रोफेसर गीतांजलि बेटमैन वाने, SGPCI के निदेशक प्रोफेसर R.K. धीमान जी, डीन प्रोफेसर शालीन कुमार जी, SGPCI के सभी सम्मानित आचार्यगण, शिक्षकगण, यहाँ के सभी कर्मचारीगण और सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, 4 दशक की एक शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। एक दार्शनिक ने कहा कि जीत की तैयारी इतनी शालीनता के साथ करो कि आपकी सफलता शोर मचा देगी। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जैसे देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में स्वास्थ्य का मानक क्या होना चाहिए, मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यह मानक न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर भारत में अब SGPCI तय कर रहा है। और बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी हो हल्ला के SGPCI ने इस यात्रा को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है और इसीलिए इस शानदार यात्रा के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 5 वर्ष के दौरान, पिछले 5-7 वर्ष के दौरान SGPCI ने अपनी समय के उस प्रवाह के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाया है और अपनी स्पीड को बढ़ाने के साथ SGPCI ने अपने आप को वर्तमान की प्रतिस्पर्धा के साथ हम खड़े रह सकें, इसके लिए जिस विजन के साथ संस्थान के निदेशक, संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहां के सभी कार्मिक और यहां के सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर के संस्थान को आज जिस नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया है, मेरा मानना है कि अगले 5 वर्ष इस संस्थान के लिए और भी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था, आज वे डिपार्टमेंट यहां पे खुल रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके बारे में
पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर कार्य हो रहा है। और हम लोगों ने भी विभाग से भी कह रखा है, साथ साथ SGPCI से भी कह रखा है कि भाई हेल्थ सेक्टर में जो कुछ भी नया हो सकता है उसको लाने के लिए, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करने के लिए हमें पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा, जुटना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर वो परिणाम हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिले हैं। और संभवतः देश का ये पहला चिकित्सा संस्थान होगा जिसको CSR से लगभग 500 करोड़ रुपए भी इस दौरान प्राप्त हुए हैं, जिसमें सालोनी फाउंडेशन के साथ साथ यहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट के लिए जो सुविधा बनने जा रही है, इन सब को मिला लें तो यह अपने आप में नई उपलब्धि संस्थान ने अर्जित की है। और इस शानदार यात्रा के लिए जहां इसका श्रेय संस्थान को जाता है, संस्थान के निदेशक, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के सभी कार्मिक, यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को, सबको इसका श्रेय जाता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने चुनौती भी उतनी ही मजबूत होती है। ये चुनौती के प्रति एक पक्ष को लेकर के तो आप चले हैं, बहुत मजबूती के साथ चले हैं। और वो पक्ष है कि हम हेल्थ को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ सकें। जैसे भारत सरकार ने भी टेली कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन के एक मॉडल के रूप में SGPCI को भी एक सेंटर के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया है। और उनका भी है कि एक नोडल केंद्र बने जहां से पूरा यह अन्य लोगों के लिए भी, यह पूरे प्रदेश के लिए भी और उत्तर भारत के लिए भी मानक तय करे। मैं धन्यवाद दूंगा यहां की टीम को। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जब कोरोना वायरस यूपी के अंदर दिखा था, तब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक एडवाइजरी टीम का गठन किया था। SGPCI के डायरेक्टर उसको हेड करते थे। हम लोगों ने उस समय प्रदेश के अंदर सर्वे कराया था तो 36 जनपद हमारे ऐसे थे जिन जनपदों में ICU का एक भी बेड नहीं था। कैसे होगा, बीमारी के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन कैसे इन जो चुनौतियां आ रही हैं, जो दुनिया के अंदर सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उसका सामना कैसे कर पाएंगे। जब इस पे चर्चा होनी प्रारंभ हुई तो उस समय यहां के निदेशक ने एक सुझाव दिया था कि हम लोग टेली ICU प्रारंभ कर सकते हैं। और फिर हमने कहा भी टेली ICU संचालित करने के लिए कुछ तो वहाँ की प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे मास्टर ट्रेनर पहले एक एक यहाँ पे ट्रेंड करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि SGPCI ने पूरी शालीनता के साथ उस दौरान प्रदेश में वर्चुअल ICU प्रारंभ किए थे और 75 के 75 जनपदों ने उसके माध्यम से हजारों लोगों की जान को बचाने में मदद मिली थी। वो एक शुरुआत थी। आज उसको और मजबूती के साथ भारत सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य आगे बढ़ाया है। 6 मेडिकल कॉलेजेस पहले चरण में जुड़े हैं। प्रदेश के अंदर अन्य मेडिकल कॉलेजेस को भी इसके साथ जोड़ने की तैयारी हो रही है। याद रखना, स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक अधिकार है। हर व्यक्ति को स्वस्थ होने का अधिकार है और स्वस्थ होने का इस अधिकार से कोई व्यक्ति या कोई सरकार उसे वंचित नहीं कर सकती। अच्छी बात है कि हम उसको सही दिनचर्या के लिए प्रेरित